دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو فلسطینی لوگ ہیں وہ عربوں سے اتنی امید نہیں رکھتے جو امیدوں کو پاکستان سے. یہ کچھ ثبوت ہے. دیکھ This is the support that Palestine should be getting, especially from fellow Muslim countries. The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, sees what's going on in the Middle East right now with other Arab countries, Emirates, now establishing their relationship with Israel and recognizing it as a country in the Middle East, also encouraging other Arabi countries to do the same. But Pakistan says, nah, we ain't with that shit. And beyond that, for those of y'all who don't know, Pakistan is one of the only countries in the world that forbids Israeli citizens from entering their country. They're literally not allowed in Pakistan if you have an Israeli passport. Like, could you see an Arabic country doing that? No! Because they haven't. They're not doing that. Like, not even the Arab countries got our back like that. Like, damn, Pakistan. Oh. I already loved Pakistan before this statement was released today, but now, like, this is gonna be me for the next at least like 2 weeks. Yes, I do randomly have a Pakistani flag in my car that my friend gave me from Pakistan. Thank you, Atul. No, I did not bring it. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں. اور یہ کیوں رکھتے ہیں اس کے میں حدیث کی روشنی میں جس کا جواب آگے دوں گا. یہ خط کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر آف اسرائیل بن گوریان نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھا تھا, جس میں تعلقات بڑھانے اور قائم کرنے کے حوالے سے بات چیت کرنے کا دعوت تھی. لیکن قائد اعظم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ان کا واضح موقع تھا. ان کی بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کا ناجائز بچہ ہے جسے وہ پال رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان نے آج تک فلسطین کے لیے کیا کیا ہے. پاکستان نے چیکو سلوواکیہ سے 250,000 رائفلیں خرید کے فلسطینیوں کو دی تھی. پاکستان نے اطالیہ سے 3 جہاز مصر کے لیے خریدے تھے اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے. اس کے علاوہ اپریل 1961 میں ایک پائلٹ تھے پاکستان فضائیہ کے جن کا نام ہے سیف الاعظم. انہوں نے جب امریکہ سے اپنی ٹریننگ لی تھی تو ان کو ٹاپ گن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. سیف الاعظم کے علاوہ آج تک دنیا میں کچھ ایسا پائلٹ نہیں ہے جس نے اسرائیلی ایئر فورس کے اتنے طیارے گرائے ہوئے. یہ اردن کے اندر یہ ان کے اردن کے جو پائلٹس ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے دینے کے لیے پاکستان سے گئے ہوئے تھے. وہاں سے وہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے خود اس جنگ میں حصہ لے کے پہلے ہی 3 دن کے اندر اردن میں رہ کے 2 طیارے اسرائیلی گرائے. پھر وہاں سے ان کو عراق بھیج دیا کہ وہاں عراق میں جہاز اڑا کے انہوں نے 2 طیارے وہاں سے اسرائیل کے گرائے. تو یہ اتنے ماہر پائلٹ تھے اور کامیابی ان کی یہ تھی کہ ان کے پاس جو طیارے استعمال کر رہے تھے وہ
बहुत पुराने थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसराइल के पास थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से 2001 में इनको लिविंग ईगल्स का अवार्ड दिया गया था और उनमें इनको शामिल किया गया था इसी वजह से। के बहुत सारे मौके नज़र आते हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मदद की फ़लस्तीन की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान पास क्या सलाहियतें हैं। पाकिस्तान ने 2015 के अंदर ही अपना मिसाइल जो है शाहीन 3 ये लॉन्च किया था, और ये लॉन्च होने के बाद इसराइल डायरेक्ट पाकिस्तान की जद में आ गया। ये नक्शा आप देख सकते हैं, ये वो नक्शा है जहाँ तक शाहीन 3 जो है वो मार कर सकता है। मुस्तकबिल में क्या होगा ये तो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला का ऐप का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है ना। कुछ हदीस देखते हैं। तो अहमद में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खरासान से स्याह झंडे निकलेंगे और उन्हें कोई ताकत वापस नहीं फेर सकेगी यहाँ तक कि वो एलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में नस्ब कर दिए जाएंगे। एक और हदीस है, अगर तली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने साहबजादे व हसन की तरफ देखकर फरमाया मेरा ये बेटा सरदार होगा जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम रखा। अनकरीब इसकी नस्ल से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा और अखलाक में भी तुम्हारे नबी के मुशाबे होगा। फिर एक तवील किस्सा जिक्र फरमाया और उसके बाद फरमाया कि मावराल नहर से एक आदमी निकलेगा जिसे हारिस बिन हरास कहा जाता होगा। इसके सामने एक और आदमी होगा जिसे मंसूर कहा जाता होगा। वो मोहम्मद सल्लम की आल को तसल्लत देगा, उनको इक़्तिदार दिलाएगा जैसे कुरैश ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी थी। इसकी मदद करना हर मुसलमान पर वाजिब होगा, या ये फरमाया कि उसकी दावत कबूल करना वाजिब होगा। ये 2 हदीसें मैंने जिक्र की हैं, एक मसनद अहमद की है और दूसरी दोनों मसनद अहमद की है। एक जो पहली वाली हदीस है वो तिरमिज़ी शरीफ में भी आती है। खरासा और मावरल नहर ये 2 इलाकों का जिक्र हुआ है। तो अक्सर लोगों को तो पता होगा कि खरासान का इलाका कौन सा इलाका है। तो मज़ीद आइए देखते हैं नक्शे की मदद से कि मावरल नहर और खरासान का इलाका कौन सा इलाका है। ये अफगानिस्तान का बेशतर हिस्सा, वस्ती एशियाई रियासतें, पाकिस्तान का हिस्सा और कुछ ईरान का हिस्सा, इस पूरे हिस्से को खरासान कहा जाता था। दरियाए आमू से लेकर दरिया सिंध के दरमियान का जो जितना भी इलाका है इस सबको खरासान कहा जाता था। आज की मौजूदा सूरत हाल इस इलाके की कुछ इस तरह है, सबके सामने है। रूस आया अफगानिस्तान में, टुकड़े टुकड़े हो गया। अमेरिका पूरी दुनिया को साथ लेके अफगानिस्तान में और जिल्लत आमेर शिकस्त के बाद वहाँ से निकल रहा है और बस आधी से ज़्यादा फौजी निकाल चुका, थोड़ी सी रह गई हैं। इमरान खान पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म, उसका लहजा देख लिया अमेरिका के खिलाफ कैसा हो गया है। तो वो 50-60 हज़ार लोग जिनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बावजूद वो दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा। सीधी सी बात है, हदीस के अंदर, कुरान पाक की आयत के अंदर हमें इशारे ज़रूर मिलते हैं, हम उस इशारों को वक्त के साथ साथ समझते हैं। अब ये हालात कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान और खरासान के अंदर। इतना ज़रूर पता है कि ये जो अहादीस बयान की गई हैं, जो अहादीस है वो लाजमी पूरी होकर रहेंगी। कैसे होंगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन अंदाज़ा ये है कि यहाँ से जो लश्कर उठेगा वो फिर जाके फ़लस्तीन में रुकेगा। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी से पहले उसका इलाज दुनिया में नाजिल किया है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 5-6 माह के मुख्तलिफ अरसे के दौरान 2 रियासतें, 2 मुल्क दुनिया के नक्शे पे उभरते हैं, दोनों मजहबी बुनियादों पे उभरते हैं, एक इसराइल और एक पाकिस्तान। इसराइल यहूदी जो मजहब है उसको लेके उभरते हैं कि हम यहाँ पे अपने जो मजहब है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और उसके मुताबिक कानून साजी होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक नक्शे पे उभरता है जहाँ पे भी मजहबी नजरिए के बुनियाद पर इसको कायम किया जाता है कि यहाँ पे हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। पूरी इंसानी तारीख के अंदर मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरी वाहिद रियासत है
जो इस्लामी नजरिए को लेके इसकी बुनियाद पर वजूद में आई है, इसकी बुनियाद पर ये मुल्क बना है। तो ये इत्तेफाक नहीं है। इससे जाहिर ये होता है कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम लिया जाएगा इस्लाम का। ये हदीस आपके सामने है। ओमान ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कोई हिस्सा और जो वस्ती ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह के इलाके हैं, एक मजबूत इस्लामी ब्लॉक बनेंगे जिसका आगाज तालिबान की हुकूमत कायम होने से होगा। अंदाज़ा है, देखकर अल्लाह ताला जानते हैं। और उसके बाद ये इस्लामी ब्लॉक इतना मजबूत बनकर उभरेगा कि इंशाल्लाह जब यहाँ से निकलेगा तो इसराइल की सरजमीन पे जाके दम लेगा। अल्लाह ताला हमें अपने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। जो कहने सुनने में गलती होगी वो माफ़ फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मज़ीद ऐसी वीडियोस और इसके अलावा बहुत कुछ नया जानने और सीखने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।